ये स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, हाउ डिड ए ब्राइट एक्साइट द साइंटिफिक वर्ल्ड एट द एज ऑफ 22? द आंसर इज ए ब्राइट presented a new theory on how cells work when he was merely 22. He published his theory in the form of an article in Proceedings of the National Academy of Science. So it was the name of the journal. ये एक जर्नल थी, साइंस की जर्नल थी। इसका नेम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस और इसमें उसका आर्टिकल पब्लिश हुआ था। एंड इट वाज हिज achievement, it was his great achievement because he was merely means he was only 22 years old at that time. So it was a great achievement for him. तो उसने इस scientific world को excite कर दिया. Excite means everybody was amazed when his work was published. Okay, so it is the answer of this question. Question number 2. When did Ebright start collecting things? What did he collect and why? Ebright started collecting things when he was in kindergarten. तो kindergarten में जब वो था, KG क्लास में था, then he started collecting things. He lived in a remote place and had no friends. Remote means very far off. ठीक है, बहुत दूर था उसका घर और उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे वहाँ पर. So he took up the hobby of collecting butterflies, coins, fossils and rocks. तो वो जो भी उसको मिलता था, स्पेशली these things, वो उनको कलेक्ट करता रहता था. ओके, तो इसका रीज़न ये था, क्यों करता था? बिकॉज ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड टू प्ले विद. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड एब्राइट सून लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसका क्यों बटरफ्लाइज टैग करने में इंटरेस्ट लूज हुआ. Ebright soon began to lose interest in tagging butterflies. The reason was that there was no feedback, क्योंकि उसको कोई feedback ही नहीं मिल रही थी. Only 2 butterflies tagged by him were recaptured not far from his place. This was quite discouraging for him. तो इसीलिए उसको बहुत discouragement हो रही थी उससे. वो encourage नहीं हुआ कि वो further इस activity को pursue करे. That's why he lost interest. Question number 4. How did Ebright get a hint of what real science is? तो उसको कैसे पता चला कि real science होती क्या है? At the country science fair, Ebright realized what real science is. It was not a neat display but real experiments. ये सिर्फ एक अच्छा डिस्प्ले करना नहीं होता, बट उसमें एक रियल एक्सपेरिमेंट्स दिखाने होते हैं. He lost and felt sad to sit there and not get anything while everyone else had got something. तो वो बहुत सैड, उस टाइम उसे फील हुआ, उसे कुछ भी नहीं मिला था जबकि सबको कुछ मिला था. He was the only one, he didn't get anything. Do you think Richard's mother was too indulgent when she bought him things like cameras, telescope, microscopes? Give 2 reasons to support your answer. As you can see, this question is given in CBSE question bank. So it's an important question. The answer is I don't think so. Indulgent. अब यहाँ पर indulgent का meaning आपको पता होना चाहिए. Indulgent means lenient, okay, और very soft hearted. Too intelligent. देखो, too का meaning क्या हो? ये negative word बन गया है यहाँ पर. जितना उसको lenient नहीं होना चाहिए वो उतनी थी. क्या आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लीनियंट थी, उसको इतना नहीं होना चाहिए था? तो इसका आंसर क्या होगा? आई डोंट थिंक सो. शी ट्राइड टू प्रोवाइड हिम ऑल पॉसिबल सपोर्ट टू अटेन हाइट्स ऑफ सक्सेस. शी वॉज अ वेरी कंसर्न्ड मदर. मोreover, she was his only companion till he started school. नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज she just wanted to provide him all possible support. क्योंकि वो तो उसको सिर्फ पॉसिबल सपोर्ट ही दे रही थी ताकि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बने, टू अटेन हाइट्स ऑफ सक्सेस. और वो बहुत कंसर्न मदर भी थी और वो सिर्फ
उसकी एक ही कंपेनियन थी टिल ही स्टार्टेड स्कूल। उसका कोई भी कंपेनियन, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था जब तक उसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया। चलिए नेक्स्ट में क्या है, डू यू थिंक वी ऑलवेज नीड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑल साइंस एक्सपेरिमेंट्स? वाई नॉट? This question is also important. It's written CBSE question bank. We do not always need. The answer is we do not always need sophisticated instruments for all science experiments. Some experiments only need keen observation. Keen means जब आप बहुत ध्यान से देखते हो, okay, very close observation, when you closely observe something. Keen observation and curiosity to know. और आपके अंदर एक ईगरनेस होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए दैट वाई इज़ इट हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वाई इट इज़ हैपनिंग, हाउ इट इज़ हैपनिंग. दिस क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड, ओके, एंड यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू ऑब्जर्व इट केयरफुली, वेरी केयरफुली एंड क्लोजली. सो ये ज़रूरी नहीं है दैट यू शुड ऑलवेज हैव द सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. ओके. Then next is question number 7. Richard's mother was the companion and spent a lot of time with him. A parent should try to be a companion to a child. Justify. देखिए CBSE क्वेश्चन बैंक में है, ये एक तरह का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. The answer is a parent should definitely try as they are their children's role models. Because parents एक child के रोल मॉडल्स होती हैं. स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन देम. जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है दैट दे हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, कि उनके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है. रिचर्ड्स मदर आइडेंटिफाइड द स्पार्क इन हिम एंड वॉज एबल टू हेल्प हिम इन लर्निंग न्यू थिंग्स. तो रिचर्ड की मदर ने तो उसको पहले ही समझ लिया था कि उसमें कुछ एक बहुत ज़्यादा स्पार्क्स. यहाँ पे स्पार्क का मीनिंग क्या है, दैट ही वॉज अ गिफ्टेड चाइल्ड, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज अ जीनियस. ओके. और उसने उसको आइडेंटिफाई करा और उसने उसकी बहुत हेल्प करी इन लर्निंग न्यू थिंग्स को, और वो नई नई चीज़ें जानी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. 40 to 50 वर्ड्स ईच है इनका आंसर. How does the writer equate a bride's achievement to an achievement in the world of sport? The answer is an important science journal had published an article written by college students, a bride and his roommate. This was an outstanding achievement at this age. तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इम्पॉर्टेंट साइंस जर्नल में उसका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था और उसने और उसके रूममेट ने उसे लिखा था, और एक आउटस्टैंडिंग एक्सलेंट अचीवमेंट थी उस एज में. इट मे बी इक्वेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट इफ़ अ प्लेयर मेक्स द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 और हिट्स अ होम रन इन हिज फर्स्ट टाइम ऑफ बैटिंग. The comparison means that it was a unique achievement at a very young age. यहाँ पर कंपैरिजन क्यों किया गया है, बस ये दिखाने के लिए कि एक यूनिक अचीवमेंट थी, एक बहुत ही यंग एज में उसने एक बहुत यूनिक अचीवमेंट करी थी. क्वेश्चन नंबर 2. What was Ebright's limitation in being brought up at reading in Pennsylvania? But there was one thing I could do, collect things. What collection did Ebright make? When did he start making collection? So this question is important. Okay. The answer is Ebright was brought up in a small place which was close to reading in the state of Pennsylvania. It was a lonely place. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर उसकी अपब्रिंगिंग हुई, कहाँ पर वो ब्रॉट अप हुआ. It was a small place which was close to reading in the state of Pennsylvania. वहाँ पर हुआ था. It was a lonely place. वहाँ पर कोई लोग नहीं रहते थे. Ebright had no companion or friends with whom he could play. कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था वहाँ पर with whom he could play football or baseball. Then it was only one thing that he could do, collect things. Therefore he began to collect butterflies, rocks, fossils and coins when he was in kindergarten. तो इसका रीज़न था, तभी उसने ये सब कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. Ebright found a great companion in his mother. Discuss. तो उसकी मदर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था उसकी सक्सेस में. एक ग्रेट कंपेनियन भी थी वो.
A Bright was a boy with a bright mind. He had a great curiosity to learn new things. So his mother encouraged him to learn more and more. She often took him on trips. She also brought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other such things. She became his constant companion and tried to find work for him, which encouraged learning. तो इस तरह से उसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी. ओके, उसे इनकरेज किया, उसके लिए मटेरियल लेकर आती थी वो, और इवन वो उसके लिए फ्रेंड्स भी लेकर आती थी जो उसके घर में जब उसके आसपास कोई नहीं रहते थे, बट फिर भी वो उसके लिए फ्रेंड्स को लेकर आती थी घर पे. शी ऑल्सो ब्रॉट ऑल दीज थिंग्स लाइक माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटीरियल्स, ताकि उसका इंटरेस्ट साइंस में इंक्रीज़ हो और वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहे. तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसकी मदर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था उसके सक्सेस में. एंड ही फाउंड अ ग्रेट कंपेनियन इन हिज मदर. शी नेवर लेट हिम फील अलोन और लोनली. उसने बिल्कुल भी उसे लोनली या अलोन फील करने नहीं दिया. ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी आपके साथ. आई होप यू हैव लाइक द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.